Okay. So up to the last session, we discussed about the mechanism of breathing. Okay. In today's session, we will complete the lesson actually, and we're going to discuss about some of disease which is related to the breathing and exchange of gases, or we can say respiration. We discuss about the volume and capacity of lung, as well as we're going to discuss the information about hemoglobin. We will going to discuss about transportation of O2 and CO2. That thing we will going to discuss in today's session. Okay. So before going to start the session, we go through some technical check. Please answer me, and after that we will start the session. Am I audible clearly? If you have any type of issue, please message in chat. Okay, chaliye. So I think everything is clear from my side because a lot of people have a positive response. That's why I'm end this poll and going toward the next, guys. Next is the question as per our regular things. We're going to first on the question. That is, first question is, bulk of carbon dioxide released from the body tissue into blood is present as a bicarbonate in blood plasma and RBC. Free CO2 in a blood plasma, 70% carb amino hemoglobin, and 30% of bicarbonate carb amino hemoglobin in a RBC. So I'm launching poll for it, guys. Please answer fast. Actually, this part is not completed in our session, but I think you already read it. That's why I'm adding this type of question. Okay, so please answer wisely. Okay, correct, Manjiri. Answer fast, guys. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. 10 seconds are left. Please answer fast. Okay, so I am ending the poll now. And this is your result. Maximum people chosen option C, and option C is a not answer actually. Okay, I'm stop sharing it. So the answer of question is the option A. ठीक है, option A जो है यहाँ पे answer है. ठीक है. So here bulk of carbon dioxide released in the body tissue and in blood is present as a bicarbonate in a blood plasma and a RBC. Okay, this is the actual answer. Why this is the answer we will going to discuss in this session. Okay, so don't worry about it. Okay, so maximum people answer this like a 70% carb amino hemoglobin. Then what is meant by carb amino hemoglobin? When carbon dioxide combined with hemoglobin, that condition is known as the carb amino hemoglobin. So one thing we want to remember from this question, after we can say
combination of CO2 with hemoglobin, going in the we can say plasma and blood, ठीक है, इस चीज में ये जाएगा and it converted as a bicarbonate, और we can say it present as a bicarbonate, वहां पर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है. सो दिस थिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द next slide, so don't worry about it, ठीक है. And 30% as a bicarbonate, but here you can see the bulk amount is the bicarbonate, and that's why option A is the correct option, ठीक है. Coming to the next guys, the next question is the alveolar epithelium in the lung is non-ciliated columnar, non-ciliated squamous, ciliated columnar, ciliated squamous. Actually this thing we already revised in the last session, so you want to answer it, everyone want to answer it, ये चीजें हमारी हो चुकी है. चलिए जल्दी जल्दी, come on guys. Forty seconds are left. Please answer fast. Correct, Manjiri. Ten seconds are remain. Please answer, guys. Fast, fast. चलिए जल्दी जल्दी. Correct, Vaibhav. Okay, so I am end this poll. So here option D opted or chosen by a lot of people, but option D is a not answer actually. So lot of people confuse in one thing, that is it ciliate or non-ciliated squamous? Okay, so lot of people को पता है it is the squamous, ठीक है. But lot of people again confuse, is it ciliate squamous or non-ciliated squamous, ठीक है. So there have one logic, यहाँ पर एक logic ध्यान में रखना. Where is a ciliated tissue going to work? कहां पर सिलिएटेड टिश्यूज काम करती है, कहां पर करती है? वेयर इज अ समथिंग गोना पास, मतलब जहां पर कुछ ना कुछ पास हो रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, ठीक है. सो देयर इज अ यूज ऑफ सिलिएट टिश्यूज, वहां पर सिलिएट टिश्यू का यूज होता है. ओके, बट व्हेनेवर यू सी द एल्वेओलाई, सो व्हाट्स हैपन इन द एल्वेओलाई, एल्वेओलाई में क्या होता है? इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है. ये क्या है? गैसेस का एक्सचेंज है, लाइक O2 एंड CO2, एंड दिस एक्सचेंज बेस ऑन द, किसके ऊपर बेस करता है? इट इज अ बेस ऑन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, इसके पार्शियल प्रेशर पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी. सो देयर हैव नथिंग टू पास फिजिकली, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा फिजिकली इन द सेंस प्रेशर वाला एक सीन है यहाँ पर, बट ऐसा कोई चीज नहीं है यहाँ पर कि उसको पुश करना पड़े. देयर हैव नथिंग टू पुशिंग लाइक थिंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज द कॉमस, बट इट इज अ नॉन सिलिएटेड. कौन सा कॉमर्स रहेगा वहां पर? नॉन सिलेटेड. सो प्लीज रिमेंबर, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ लॉजिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ पर हम इस तरीके का लॉजिक जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है. चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट थिंग इज द लंग्स वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी, ठीक है. देन व्हाट इज द मीन बाय लंग्स वॉल्यूम? लंग्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है. So before going to discuss about the lungs volume and capacity,
we go through some basic thing, that is a thoracic versus abdominal breathing. Okay, then what is mean by thoracic breathing? So breathing is the slow and breathing is done by the thoracic area, मतलब जो breathing thoracic area से होता है, okay, that thing is known as the thoracic breathing and it is a generally seen in the female. ये हमें कहाँ पर मिलता है? ह्यूमन के केस में, in case of human it is generally seen in the female. एंड अगर कंप्लीट थोरेसिक ब्रीथिंग की बात करें, सो कंप्लीट थोरेसिक ब्रीथिंग हैपन इन द प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, क्योंकि उनको एब्डोमिनल ब्रीथिंग नहीं कर सकते वो उस टाइम. सो ब्रीथिंग हैव टू टाइप, दैट इज थोरेसिक और एब्डोमिनल. देन व्हाट इज मीन बाय एब्डोमिनल? वेयर एब्डोमन पुश द एयर, ठीक है, मतलब जब एब्डोमन यूज होता है एयर को पुश करने के लिए, लंग्स को जो है सपोर्ट करने के लिए, that thing is known as the abdominal and abdominal breathing is a seen in the male. ठीक है, ये कहां पर मिलता है? हमें मेल के केस में देखने को मिलता है. एंड इन केस ऑफ फीमेल देयर हैव अ thoracic breathing. फीमेल के केस में क्या रहेगा? thoracic breathing रहेगा. ठीक है, चलिए coming to the next guys, next thing is the volume and capacities of the lungs. ठीक है, then what is the mean by volume and capacity? volume और capacity का मतलब क्या होता है? when the quantity of air the lungs can receive, ठीक है, and it expel under different condition is called the volume of lung. उसे हम कहेंगे volume of lung. ठीक है, and there have again one word, that is a capacity. That means combination of two or more pulmonary volumes are called capacities. उसे हम कहते हैं capacities. ठीक है, चलिए अब लंग जो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि लंग्स कितना एयर को रिसीव करता है. अगर सिंपल शब्दों में हम कहे सो हाउ मेनी एयर कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल. ठीक है, मतलब कितना होल्ड करता है एयर को, दैट थिंग इज नोन एज द वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम. उसे हम कहेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम. ठीक है, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन वेयर टू वॉल्यूम्स that is known as the capacity. उसे हम कहते हैं कैपेसिटी. चलिए फिर सो सीधा सीधा हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटी एंड वॉल्यूम. सो फर्स्ट थिंग इज वांट टू नो दैट इज अ टाइडल वैल्यू. ठीक है, पहला चीज क्या है? टाइडल वैल्यू. ओके, देन व्हाट इज मीन बाय टाइडल वैल्यू गाइस? So in case of tidal volume, it is the volume of air inspire or expire during normal breath. ठीक है, during normal breath when we inspire, मतलब हमारे शरीर के जो है बाहर से अंदर अगर एयर जाता हो, that thing, and expire मतलब हमारे शरीर से जब एयर बाहर जाता है, that thing is known as the tidal volume. ठीक है, और tidal volume कितना रहता है? That is a 500 ml. ठीक है, इतना जनरल एक टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू बताया जाता है फॉर द नॉर्मल ब्रेथ. ओके, फॉर द नॉर्मल ब्रेथ. ओके गाइज, ओके, एंड इट डिनोटेड एज अ टीवी. ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? टीवी से. दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. ये इस डायग्राम में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है. दिस इज द टाइडल वॉल्यूम. यू कैन सी where normal breathing is happening and capacity रहेगा इसका 500 ml. In case of inspiratory reserve volume, it is the extra amount of air can be inspired. ठीक है, so ये क्या रहेगा? It is the extra amount of air जो है इंस्पायर किया जाता है.
can inspire, okay, that thing is known as the inspiratory reserve value, ठीक है। और ये कितना रहेगा, it up to 2500, सॉरी 2500 टू ये रहेगा 3000 ml, ओके, ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सपायरेटरी, ठीक है, दिस इज द इंस्पायरेटरी एंड इसी के जैसा रहेगा एक्सपायरेटरी, ओके, एक्सपायरेटरी, ठीक है। देन व्हाट इज द एक्सपायरेटरी, अगेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कैन एक्सपायर, मतलब जो बॉडी के बाहर भेज सके, ठीक है, दैट ऑल्सो नोन एज द फोर्स एक्सपिरेशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, फोर्स एक्सपिरेशन, ठीक है। एंड इट इज नोन एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू का जो वैल्यू है दैट इज 1000 टू 1100, ठीक है, इतना इसका वैल्यू रहता है, ओके। एंड इट डिनोटेड बाय ई आर वी, ठीक है, ई आर वी से इसे डिनोट करेंगे एंड दिस इज डिनोटेड बाय आर आई आर वी, ओके। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टर्म इज द रेसिडुअल वैल्यू, ओके। Then what is the mean by residual volume, guys? Residual volume का मतलब क्या होता है? Here volume of air which remains still in the lungs, ठीक है? So volume remain in the lungs, it is known as the residual volume, ठीक है? And जैसे आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब हम यहाँ पर लिख ही देता हूं ना, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुली अगर हवा शरीर से बाहर निकाले, ठीक है, आफ्टर दैट सम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द बॉडी, दैट थिंग इज नोन एज द रेसिडुअल वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज द 1100 ml टू 1200 ml, ठीक है। चलिए, so this is a different type of value, it is a denoted as a RV, इसे हम RV जो है उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। So coming to the next guys, next is the capacity, okay। So first thing in the capacity is the inspiratory capacity, okay, inspiratory capacity, ठीक है। Then what is mean by inspiratory capacity, it is denoted as a IC, ठीक है। Then what is mean by inspiratory capacity, inspiratory capacity का मतलब क्या होता है, so total volume of air a person can inspire after normal expiration, मतलब कितना जो है वॉल्यूम बॉडी के अंदर ले सकते हैं आफ्टर एक्सपायरेशन, ठीक है, मतलब एक्सपायरेशन होने के बाद, ठीक है। एंड इट इंक्लूड द टाइटल वैल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला ऑफ आईसी, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं टाइटल वैल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है। आईआरवी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अगेन मैं बताता हूँ, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after normal expiration, ठीक है, मतलब किसी पर्सन ने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया एंड आफ्टर दैट ही टुक द एयर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, दैट थिंग इज नोन एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एंड इट इंक्लूड और it included the volume of tidal, okay,
एज वेल एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से देयर हैव नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड इट डिनोटेड बाय EC। किससे डिनोट करते हैं हम? EC से। Then what is the meaning of EC? So it is the total volume of air person can expire, okay, after a normal inspiration। मतलब एक इंस्पिरेशन होने के बाद में हम कितना एयर को बाहर निकालते हैं नॉर्मली शरीर के। ठीक है, दैट नोन एज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगेन इट कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड ERV। ठीक है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द वाइटल कैपेसिटी। ओके, vital capacity। Okay, then what is the meaning of vital capacity here? It is the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, or maximum volume of air person can breathe out of forced inspiration। मतलब इतना मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन ब्रेथ आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन जैसे फोर्स एक्सपायरेशन हो गया समझो, ठीक है, या फोर्स इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, सो फोर्स इंस्पायरेशन होने के बाद भी अगर कोई जो पर्सन है, ठीक है, वो एयर को ब्रेथ कर सके इनसाइड, बाहर से, दैट इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और अगर इसी केस को हम थोड़ा सा रिवर्स जो है ये करते हैं, किसी का फोर्स एक्सपायरेशन हो चुका है, मतलब फोर्सफुली एयर को बाहर फेंक दिया है, फिर भी एयर बाहर भेजने का जो कैपेसिटी रहता है, दैट थिंग इज नोन एज दी वाइटल कैपेसिटी, उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। एंड इट इज वी कैन से द फॉर्मूला इज द टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये इसका है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शनल रेसिडुअल capacity। Then what is meant by functional residual capacity? So it is the volume of air that will remain in lungs after normal expiration। ठीक है, that thing is known as the functional residual capacity। functional residual capacity का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा, जो रिमेन रहेगा इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब हवा बाहर निकालने के बाद भी जो रिमेन रहता है, दैट थिंग इज नोन एज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है दैट इज RV प्लस ERV। ओके, चलिए अब देखिए, मैं फिर से ये सारी चीजें ना थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ फास्ट में। ठीक है, ध्यान में आ जाएगा फिर से। सो यहाँ पर हम है ना जो है वॉल्यूम और कैपेसिटीज को देख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम एंड व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी? वॉल्यूम इज द कंडीशन जो सिंगल वे रहेगी। जनरली सिंगल वे का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एक साथ में हो रहा है, वो उसे हम कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम की केस में हम क्या करेंगे कि जहां पर दो डिफरेंट कंडीशन नहीं रहेंगी, आइदर इट रिसीव, या उसका ही मतलब हम बोल सकते हैं आइदर इट होल्ड
और एक्सपायर, दोनों में से एक कंडीशन, ठीक है, उसको वैल्यूम बोलेंगे हम हमारी भाषा में, ठीक है। सो टाइडल वैल्यूम का मतलब क्या होता है? इट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग वेयर inspire or expire the air, okay, and the capacity of inspire or expire in a normal breathing, it is the 500 ml, वो कितना रहेगा? 500 ml रहेगा। Next is the inspiratory reserve value. So what is mean by inspiratory reserve value? So when we inspire extra amount of air inside the body, that is known as the inspiratory reserve value, मतलब बाहर से जब ज्यादा एयर बॉडी के अंदर भरी जाए, ठीक है, मतलब फोर्सफुल वी कैन से इंस्पायरेशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन। उसी तरीके से इन केस ऑफ एक्सपायरेटरी हम क्या करेंगे? हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है, सो इट इज अबव फ्रॉम द नॉर्मल ब्रीथिंग, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। नेक्स्ट इज द रेसिडुअल वैल्यू। देन व्हाट इज मीन बाय रेसिडुअल वैल्यू? सो व्हेन फोर्सफुल एक्सपायरेशन हैपन, ठीक है, आफ्टर दैट some air is remain in the lung, that thing is known as the residual value, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैपेसिटी पे। then what is mean by inspiratory capacity? So it is the total volume of air when a person inspire after a normal expiration, मतलब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया, उसके बाद में क्या होगा कि पर्सन फोर्सफुली, ठीक है, एयर को जो है वो इंस्पायर करेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगेन इसका जो अपोजिट है दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देन व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? वेयर the total volume of air a person can expire after normal inspiration, मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन होने के बाद जो आदमी जो है, पर्सन जो है, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालेगा, that thing is known as the expiratory capacity. And you can see this thing in the pranayama very easily, प्राणायाम के अंदर आप ये सारी चीजें इजीली देख सकते हो, ठीक है, where someone forcefully expire the air, ठीक है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फोर्सफुली उसको एक्सपायर करते और फोर्सफुली बॉडी के अंदर लेते, that thing is known as the inspiratory capacity as well as expiratory capacity, vice versa, ठीक है, इस तरीके से। Next is the vital capacity. So what is the mean by vital capacity? Vital capacity का मतलब क्या होता है? So maximum volume of air person can breathe in, ठीक है, after forceful inspiration, ठीक है, forceful inspiration होने के बाद में फिर भी वो एयर को ब्रीथ कर सकता है, that thing is known as the vital capacity. उसी तरीके से फोर्सफुल एक्सपायरेशन होने के बाद भी जो एयर को बाहर निकल सकता है, आउट करवा सकता है, दैट थिंग इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी, वो रहेगा वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन सम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग, दैट थिंग इज नोन एज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायर होने के बाद भी, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ लंग्स के अंदर रह जाता है, दैट थिंग इज नोन एज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। चलिए, इफ इज इट क्लियर? ठीक है, इफ नॉट क्लियर यू कैन आस्क इन क्वेश्चन, सॉरी इन चैट बॉक्स, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट थिंग इज द RQ वैल्यू, ठीक है। चलिए अब RQ वैल्यू को समझते हैं। RQ वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। RQ value, it also the long form of RQ, that is a respiratory क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। 1 minute, okay, it is known as the RQ value also, ठीक है। Then what is mean by RQ value? So it is the ratio of volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen, ठीक है, मतलब ये एक कंपैरिजन है, समझिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना
O2 एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है, ऑफ CO2 evolve, okay, and yeah, you want to know this formula, okay, and volume of O2 absorb, ठीक है, that thing is known as the respiratory question, उसे हम कहते हैं respiratory question, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द ग्लूकोज, ओके, then why respiratory quotient is important, so it is important for utilization of oxygen in a different food, ठीक है। डिफरेंट फूड का मतलब क्या होता है ना, कि whenever we eat something, ठीक है, whenever we eat something that thing go toward the oxidation, ठीक है, उसका क्या होगा आगे चल के ऑक्सीडेशन होगा, ओके, एंड बाय दैट प्रोसेस ऑक्सीजन गेट एब्जॉर्ब एंड CO2 गेट इवॉल्व, ठीक है, उस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, CO2 इवॉल्व होता है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ RQ वैल्यू, एंड RQ वैल्यू इज अ डिफरेंट फ्रॉम फूड टू फूड, ठीक है, RQ वैल्यू क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा फूड टू फूड। Then my common question to you is RQ value is obtained from the anaerobic respiration, क्या हो सकता है, is RQ value obtained from the anaerobic respiration, anaerobic respiration से हमें RQ value मिल सकता है क्या, तब तक मैं RQ value लिखता हूं, जैसे ग्लूकोज, इन केस ऑफ ग्लूकोज, 1 मिनट, ठीक है, ग्लूकोज का जो RQ वैल्यू है दैट इज 1, ठीक है, चलिए, ठीक है, अब 1 क्यों है, इसका एक सीधा साधा कैलकुलेशन है, दैट इज 6 CO2, 1 मिनट, हाँ, 6 CO2 जो है वो इन्वॉल्व वहां से जो है वो निकलता है, एंड 6 O2 जो है वो एब्सॉर्ब होता है, दैट्स व्हाई इट इज द 1, ठीक है। उसी तरीके से इन केस ऑफ फैट, इन केस ऑफ फैट इट इज 0.7, ठीक है, फैट के केस में क्या रहेगा, वो 0.7 है, ओके। इन केस ऑफ प्रोटीन, इन केस ऑफ प्रोटीन इट इज 0.9, प्रोटीन के केस में ये क्या है, 0.9। सो माय क्वेश्चन इज, करेक्ट करेक्ट नहीं कुछ, मेरा क्वेश्चन क्या था, is in anaerobic respiration what is the RQ value, anaerobic respiration में RQ value जैसा कुछ रहेगा क्या, but there have no any RQ value, क्यों नहीं रहेगा, because it is anaerobic, there have no use or no absorption of O2, ठीक है। हाँ, उस केस में हम RQ वैल्यू इंफिनिटी बता सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, उस केस में जो है वो RQ वैल्यू क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, मैं लिख के देता हूं यहां पर, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, उस केस में ये इंफिनिटी आएगा, ठीक है, बिकॉज वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं रहता है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब होने के लिए, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, next thing is the gaseous exchange, okay, then what is meant by gaseous exchange, so we already talked about the alveoli in the last class, okay, so what is meant by alveoli, so alveoli is the we can say balloon like space where oxygen, or we can say oxygen and carbon dioxide get interchange, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इंटरचेंज होता है। देन हाउ इट हैपन, मतलब ये क्यों होता है, सो हियर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन थिंग्स, ठीक है, हमने डिफ्यूजन थिंग के बारे में हमें पता है, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये चीजें हमें पता है। सो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, देयर हैव सिंपल वी कैन से pressure and force things,
ठीक है, यहाँ पर प्रेशर और फोर्स के वजह से सारी चीजें होगी। एंड देयर हैव सिंपल फिजिकल कॉन्सेप्ट दैट इज अ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की मदद से सारी चीजें होगी। चलिए, so when we see the alveoli, you can see there have blood capillaries। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, which डेवलप द नेटवर्क अराउंड द alveoli। जो क्या करता है, एक alveoli के अराउंड एक नेटवर्क को फॉर्म कर देता है। ठीक है, एंड द वॉल ऑफ alveoli इज अ वेरी थिक। ठीक है, और इस कैपिलरीज का भी वॉल क्या रहता है, बहुत ही थिक रहेगा यहाँ पर। एंड हियर you can see the thickness of this membrane is up to 0.2 mm। ठीक है, ये कितना रहेगा, 0.2 mm का यहाँ पर थिकनेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, चलिए, ठीक। अब and this is a respiratory membrane, and there have different part like epithelial basement membrane, alveolar epithelium, and ये सारा पार्ट रहता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर है ना एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज अ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन बाय डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताता हूँ, इसमें से उतना ध्यान में भी रह गया तो अच्छी बात है, बिकॉज दिस टर्म आस्क इन एग्जामिनेशन। जैसे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हैज अ लिमिट टू गैसेस एक्सचेंज between alveoli and pulmonary blood। this thing is known as the diffusing capacity। ठीक है, सो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये जो है ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। ओके, एंड इट हैव सम ऑफ कैपेसिटी to receive the gas and exchange of gas। we can say receive and we can say release। ठीक है, रिलीज और रिसीव का जो कैपेसिटी रहेगा, that thing is known as the diffusing capacity। उसे हम क्या कहेंगे, diffusing capacity। that means limit of gases exchange, gases exchange by alveoli। ठीक है, alveoli and we can say capillaries। ठीक है, इनका जो एक लिमिट रहेगा, ठीक है, दैट थिंग इज नोन एज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, ओके, अब देखिए कि यहाँ पर अब जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, सो यू कैन सी हियर। So in case of alveoli, you can see यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यूम ज्यादा रहेगा। Why we want the volume of oxygen maximum in the alveoli? So you can see 104 mm Hg इतना वैल्यूम रहता है ऑक्सीजन का, because we want to diffuse oxygen easily। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को इजीली डिफ्यूज करना है। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ alveoli यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यूम क्या रहता है, ज्यादा रहता है। मतलब यहाँ पर P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, दैट इज 104। ठीक है, एंड उसी तरीके से PCO2, ठीक है,
PCO2 जो है इन केस ऑफ alveoli it is the 40 mmHg, ठीक है, और ये रहेगा 104 mmHg, ठीक है। चलिए अब देखिए PCO2 ऑब्वियस है यहाँ पर कम रहेगा एंड दैट्स व्हाई CO2 जो है वो यहाँ से इस जगह पर आ सकता है ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन एंड इट हैपन इन द alveoli, ठीक है। ये सारा चीज कहाँ पर हो रहा है? alveoli। अगर उसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं जहां पर CO2 को कलेक्ट किया जाता है, in this case the amount of pressure of CO2 is a maximum, ठीक है, वो कितना रहेगा? 45 mmHg, ठीक है, एंड वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहेगा? 40 mmHg एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर सेल जो है वो क्या करती है? CO2 को रिलीज करती है, ठीक है, और उसी वजह से CO2 मैक्सिमम होने के वजह से ऑब्वियस सी चीज है जो मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा, पोटेंशियल जो रहेगा, वो क्या करेगा? जो लो पोटेंशियल एरिया है उसमें उसको ट्रांसफर कर देगा। उसी तरीके से व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम एंड वो सेल के पास जब आता है, एट दैट टाइम यू कैन सी द लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज अ मैक्सिमम देन CO2, ठीक है। यहाँ पर CO2 40 रहेगा तो यहाँ पर ये 95 mmHg रहेगा एंड दैट्स व्हाई इट गेट ट्रांसपोर्टेड, और उसी वजह से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस गेट हैपन। इसी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? ठीक है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ इशू, यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट थिंग इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। सो देयर हैव सम वे टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। अब कौन कौन से वे हैं? जैसे मेनली देयर हैव टू वे टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, दो रास्ते हैं हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कौन से दो रास्ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज एज अ डिसॉल्व गैस, ठीक है। पहला चीज क्या है यहाँ पर? एज अ डिसॉल्व गैस, ठीक है। देन व्हाट इज मीन बाय एज अ डिसॉल्व गैस? सो यहां पर क्या होता है ना, 3% O2, ठीक है, ठीक है, इट डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, ठीक है। ये कहां पर डिसॉल्व होता है? इन द प्लाज्मा, ठीक है, डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा, ठीक है। ये एक रास्ता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। नेक्स्ट वे, नेक्स्ट केस में क्या होता है, ठीक है, एज अ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, as an oxyhemoglobin we can say oxyhemoglobin, ठीक है। चलिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन रहेगा उसके साथ कंबाइन होके जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। सो हियर 97% 97% oxygen carried by the combination of hemoglobin and the we can say combination of hemoglobin plus oxygen, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? O2 प्लस हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, जो है वो ट्रांसफर होता है, दैट इज 97%। अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, so here you can see there have two part in case of hemoglobin। हीमोग्लोबिन के जो है वो दो पार्ट रहेंगे, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट रहते हैं? वन इज द हीम ग्रुप, ओके, एंड नेक्स्ट इज द ग्लोबिन ग्रुप, ठीक है। चलिए, और अगर हम फिर से इनको और डिटेल में जाके देखते हैं,
सो ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। जो ग्लोबिन पार्ट क्या रहेगा, ये रहता है प्रोटीन पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटीन पोर्शन, ओके, एंड दिस इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप रहेगा हीम, ठीक है, और ये बनता है आयरन से। सो हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन द हीम ग्रुप? सो हियर 4 आयरन एटम इज प्रेजेंट इन द हीम ग्रुप, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सो और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में, जैसे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। सो मैं यहां पर लिखता हूं 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 और वी कैन से ऑक्सीजन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, सो ये जो है थोड़ा सा डेटा इसके बारे में। सो नॉर्मल पर्सन हैव अ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हम और कैलकुलेशन इसके बारे में करेंगे तो नॉर्मल पर्सन के शरीर में कितना रहता है, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख के देता हूँ कुछ वैल्यू, ठीक है। सो 100 ml अगर ब्लड है, ठीक है, तो 100 ml ब्लड के अंदर कम से कम 15 ml और वी कैन से 15 ग्राम, ठीक है, ओके, 15 ग्राम रहेगा हीमोग्लोबिन Hb, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से जो है जो 100 ml जो ब्लड रहता है वो 20 ml हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ठीक है, 100 ml ब्लड, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन O2 कैरीड बाय 100 ml ब्लड, ठीक है, 100 ml ब्लड, ठीक है। चलिए, सो देखिए, जनरली इफ वी गोइंग टू कैलकुलेशन एट दैट टाइम वी कैन सी 100 ml blood contain 15 gram Hb, that means 100 ml blood contain 20 ml sorry 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन रह सकता है अगर 15 ग्राम Hb है तो, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ओनली 5 ml O2 कैरी बाय द 100 ml ब्लड, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 15 ml ही कैरी हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ कैलकुलेशन अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन से वे से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता जाता है, एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कितना होता है 97%, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, दिस इज अ हीमो सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, या आपके सामने है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ठीक है। चलिए, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो रहता है, इट इज अ सिग्मोइड कर्व, ठीक है, या इट नोन एज द यस कर्व, ठीक है, इसको यस कर्व कहते हैं, और इट आल्सो नोन एज द सिग्मोइड। ये क्वेश्चन पूछते हैं, 1 minute, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो देयर हैव 2 पार्ट ऑफ कर्व, दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। यू कैन सी दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को देख सकते हो ऑक्सीजन का, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर बढ़ता जाएगा। यू कैन सी देयर इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। So this is a graph between how many hemoglobin get saturated with the specific partial pressure, मतलब कितना पार्शियल प्रेशर बढ़ने के बाद में कितना हीमोग्लोबिन उसको कैच करता है, दैट थिंग इज नोन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, उससे ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। सो यू कैन सी द टू कंडीशन हियर,
फर्स्ट इज द लेफ्ट शिफ्ट कंडीशन, मतलब देखिए कि दो कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है उसको समझते हैं। पहले हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है, इन सम कंडीशन दिस ग्राफ, ओके, दिस ग्राफ मूव टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब ये ग्राफ थोड़ा इधर चला जाता है, दैट थिंग इज नोन एज द लेफ्ट शिफ्ट। अब ये क्यों होता है, व्हाई लेफ्ट शिफ्ट हैपन, तो उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट इंडिकेट द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। ये क्या इंडिकेट करेगा, एसोसिएशन ऑफ O2 टू Hb। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ इसका एसोसिएशन हुआ है, ये चीज जो है इंडिकेट करता है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, चलिए अब ये कौन से कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए, सो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, एंड लो टेम्परेचर हाई पीएच के केस में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है जब डिक्रीमेंट इन CO2 होता है। नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगा इसको लो टेम्परेचर के केस में होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन जो है वो होता है हाई पीएच के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग इज द राइट शिफ्ट। ठीक है, चलिए अब राइट शिफ्ट मैं बताता हूं। ठीक है, सो राइट शिफ्ट जो है वो कौन से कंडीशन में होता है। ठीक है, सो राइट शिफ्ट हैपन the dissociation of oxygen from hemoglobin. It is the dissociation of O2 from Hb, हीमोग्लोबिन से होगा डिसोसिएशन। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, मतलब यहाँ पर CO2 का प्रेशर जो है वो हो जाएगा इंक्रीज। ओके, इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, बिकॉज देयर हैव वन इफेक्ट दैट नोन एज द बोर इफेक्ट, उसे हम कहते हैं बोर इफेक्ट। ओके, एंड व्हेन टेम्परेचर गेट इंक्रीज, जब टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, temperature get increase, that thing is known as the right shift. ठीक है, so two thing we discuss about the oxy hemoglobin curve. What is the two thing, first is the left shift, next is the right shift. Okay, so curve is the sigmoid, then what is mean by left shift, left shift का मतलब क्या होता है, where it association of O2 to Hb it increases, that thing is known as the left shift, उसे हम कहेंगे left shift। ठीक है, चलिए, and here you can see the CO2 get fall, और CO2 का एसोसिएशन वहां पर कम हो जाता है। ये लो टेम्परेचर और पीएच के जो पीएच जो है वो बढ़ जाएगा ब्लड का। ठीक है, लो टेम्परेचर हो जाएगा शरीर का। उसी तरीके से इनके ऑफ राइट शिफ्ट इट इज द डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम द Hb। ठीक है, सो व्हाई इट हैपन, सो देयर हैव वन इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द बोर इफेक्ट। ठीक है, इसे हम कहेंगे बोर इफेक्ट। एक बोर नाम का जो है साइंटिस्ट है, उसने ये इफेक्ट हमें बताया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोर इफेक्ट। सो व्हाट टेल इन द बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज इन ब्लड इट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ब्लड के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक आयन। ठीक है, सो आई एम राइट हियर, व्हेन CO2 release in blood, okay,
it react to H2O मतलब water, okay, and form carbonic ion. कार्बोनिक आयन, ठीक है, कार्बोनिक आयन फॉर्म करता है. दैट थिंग इज नोन एज H2CO3. ठीक है, कार्बोनिक आयन जो है यहाँ पे हम कार्बोनिक एसिड लिखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा. कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3. ठीक है, एंड देन इट गेट डिसोसिएट. ठीक है, एंड इट डिसोसिएट इन द H पॉजिटिव प्लस HCO3. ठीक है, HCO3 में ये होगा डिसोसिएट. ओके, एंड दिस H पॉजिटिव रिलीज. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट गोइंग टू लो द pH. ठीक है, ये क्या करेगा, pH ऑफ ब्लड को, ठीक है, लो pH ऑफ ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, मतलब ब्लड का pH यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, सो वी डिस्कस द वन क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास. उसका जो आंसर है यहाँ पर आपको मिल गया होगा. ठीक है, मतलब जब भी ऑक्सीजन सॉरी CO2 रिलीज होता है ब्लड के अंदर, इट रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, एंड देन वो होगा आयोनाइज. ठीक है, वहां से H पॉजिटिव अलग होगा, HCO2 वहां पर अलग होगा, और यहाँ पर लो pH जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, चलिए, दैट थिंग इज नोन एज द बोर इफेक्ट, उसे कहते हैं हम बोर इफेक्ट. ठीक है, चलिए, अब whenever we see the CO2 transportation, then what's happen in the CO2 transportation. अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन देखा है. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन देखा है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करेगा. उसी तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें तीन जो है चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन डिसॉल्व फॉर्म. तीन नहीं, दो ही है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन अ डिसॉल्व फॉर्म. ठीक है, ठीक है, अब जो CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन अ डिसॉल्व फॉर्म, मतलब क्या हो रहा है. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ हाई सोल्यूबिलिटी 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन अ ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ड्यू टू हाई solubility 7% of CO2 dissolve in a blood plasma. ठीक है, चलिए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% CO2 जो है वो डिसॉल्व होगा. ठीक है, चलिए, अब देखिए कि दूसरा एक वे है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 करेगा. दैट थिंग इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 as a bicarbonate, as बायकार्बोनेट. ओके, चलिए, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अप टू 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू बायकार्बोनेट आयन. ठीक है, व्हाई इट कन्वर्टेड वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस स्लाइड. ठीक है, यहाँ पर बायकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, बायकार्बोनेट आयन का मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पर अप टू 70% CO2. ठीक है, यहाँ पर हो जाता है कन्वर्ट HCO3 निगेटिव में, दैट इज अ बायोकार्बोनेट आयन. ठीक है, बायोकार्बोनेट आयन. ठीक है, why bicarbonate ion, and here is the one of enzyme used, that is carbonic anhydrous.
ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन हमने देखा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूटिलाइज होता है, दैट थिंग इज नोन एज द कार्बोनिक अनहाइड्रेस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। और कार्बोनिक अनहाइड्रेस के वजह से इट कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमें ये जो है ब्लड से सप्लाई होता है या ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, वी कैन से। अब ब्लड से जब ट्रांसपोर्ट होता है तो व्हाई इट कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में ही क्यों कन्वर्ट होता है? तो उसका एक रीजन है कि बाइकार्बोनेट इजीली उसको जो है लूज कर सकता है, ठीक है, इसको इजीली लूज कर सकता है, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ठीक है। So transportation of CO2 happen by two ways, that is transportation of CO2 in dissolved form, it happen with help of blood plasma, जहां से 7% जो ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ये बायकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पर वो है क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए। सो व्हेन दिस प्रोसेस हैपन, दैट इज बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन जब होता है रेड सेल के अंदर, ठीक है, तब क्या होता है कि वहां का जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे चार्ज का सिस्टम है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, मतलब निगेटिव चार्ज का जो सिस्टम रहेगा वहां पर होता है प्रॉब्लमेटिक। सो व्हेन HCO3 negative content of red cell is a more greater than the plasma. Movement of H3O3 ion, CO3 ion from RBC into plasma. मतलब यहाँ पे जब HCO3 negative get increases, ठीक है, कहाँ पर? इन RBC, ठीक है, at that time it move, ठीक है, कहाँ पर मूव होगा ये? प्लाज्मा में, ठीक है, इट मूव टुवर्ड द प्लाज्मा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द आयोनिक बैलेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है, इट गेट प्रॉब्लमेटिक। सो आयोनिक बैलेंस गेट चेंज, ठीक है, यहां पर क्या होगा? आयोनिक बैलेंस चेंज, ठीक है। अब आयोनिक बैलेंस चेंज होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? निगेटिव आयन का एंट्री जो है वो किया जाएगा, कहां पर? हमारा आरबीसी के अंदर, ठीक है, उसे ही कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। सो क्लोराइड शिफ्ट का मीनिंग क्या है? सीधा सीधा, व्हेन निगेटिव आयन दैट इज अ क्लोरीन गो इनसाइड द आरबीसी, ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट, उसे हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। और ये कब होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव गेट इंक्रीजेस, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट मूव टुवर्ड द प्लाज्मा, ठीक है, और उसके वजह से आयोनिक जो है बैलेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट फिनोमिना विच रिलेटेड टू कार्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन? फर्स्ट इज द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग is the maintain acid base balance, ठीक है, okay। Next thing is the maintain temperature, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न ब्लड एंड लिम्फ, रिटर्न
blood and live. Okay, so this is the all about we can say breathing and exchange of gas. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो you can ask me. If you don't have doubt, so there have one part is left like a disease. Okay, उसको हम cover करेंगे in next session. Okay, so if you have any type of doubt, you can ask. If not, you can answer the NPS and you can leave for a day.